Hello and welcome to everyone present here. As students, you already know that we have been discussing the chapter The Rise of Nationalism in Europe, and in the very first video lesson, we had discussed about the meaning of nationalism in Europe and the famous painting prepared by Frederick Cheriot in 1848, in which he had shown how the people of Europe and America were marching towards the Statue of Liberty, and they were being recognized by their customs of their nation and the different flags, and they were marching towards the Statue of Liberty with the purpose that they were no longer willing to live under the monarchical form of government, and they are willing to establish nation states and looking for freedom of and right to the citizen. Then we had also seen the first clear-cut expression of nationalism occurred in France in the form of French Revolution in 1789, and the French revolutionists adopted various methods and programs to create the sense of common identity among the French people. You should know the fact that prior to establish a nation state, there was need to connect the people as a whole to a nation, a sense of belongingness to a nation. But sense of belongingness to a nation comes in existence when people starts to feel themselves bind together and attached to one another on the basis of some common identities. So common identities were prerequisites to create the sense of belongingness to a particular nation, and as soon as the people will starts to attach to each other and feeling of oneness will arise among themselves, then they will recognize themselves as a citizen of a nation, and the feeling of nationalism will grow up, and then they will take efforts to establish a nation state, which we have already discussed. As the French Revolution had taken place in France first time, so the revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism, or in other words, to help them to get them free from the monarchical form of government. तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि राष्ट्रवाद क्या क्या अर्थ होता है, फिर फेडरिक शेरू द्वारा निर्मित 1848 की उस फेमस पेंटिंग के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति होती है, और उस दौरान क्रांतिकारी जो थे फ्रांस में, वो लोगों के बीच में सामूहिक अपनेपन की भावना को विकसित करने के लिए अनेक तरह के प्रोग्राम्स वहाँ पर लागू किए थे। और ये जो कदम उठाए गए क्रांतिकारों के द्वारा सामूहिक अपनेपन की भावना, क्योंकि सामूहिक अपनेपन की भावना जो होती है वह प्रथम आवश्यकता होती है लोगों को किसी राष्ट्र से जुड़ने के लिए, लोगों को अपने एक दूसरे से जुड़ने के लिए, एक दूसरे से अपने को संबंधित पाने के लिए, और एक ग्रुप के रूप में अपने को माने रिकॉग्नाइज करने के लिए। क्योंकि जब तक लोग अपने को एक दूसरे से अलग थलग महसूस करेंगे, तब तक तो नेशन का फॉर्म हो ही नहीं सकता है। और लोगों को पहले एक दूसरे से जोड़ा जाता है, और उसका आधार बनता है कॉमन आइडेंटिटी। तो कॉमन आइडेंटिटी के आधार पर लोगों को एक समूह तैयार किया जाता है, उनको एकता के सूत्र में बांधा जाता है। उसके बाद वो अपने आप किसी नेशन से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करने लगते हैं, अपने नेशन से प्रेम करने लगते हैं, और उनमें राष्ट्रवाद की भावना आ जाती है, और तब वो फिर मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से छुटकारा पाने के लिए मतलब क्रांति करते हैं। तो इसीलिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कॉमन आइडेंटिटी के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। और फिर इन क्रांतिकारियों का कहना था कि अब ये फ्रांस के क्रांतिकारियों का केवल फ्रांस में ही राष्ट्रवाद का प्रचार करना और राजतंत्र से छुटकारा पाने का प्रयास नहीं है, बल्कि फ्रांस के अगल बगल जितने भी यूरोप के देश हैं, वहाँ के लोगों को भी अब राजतंत्र से छुटकारे दिलाने का जिम्मेवारी फ्रांसीसी क्रांतिकारियों की है। और इस तरह के क्रांतिकारी विचारधारा को लोगों के राष्ट्र अन्य देशों के निवासियों को प्रयोग के, जिसमें कि मतलब हॉलैंड था, बेल्जियम था, स्विट्जरलैंड था,
और इटली था, वो फ्रांस की सेनाएं जहां 1790 के आसपास वहां पर मतलब आक्रमण की नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में। तो वो ये संदेश लेकर जा रहे थे इन देशों में कि हम लोग मतलब नेपोलियन बोनापार्ट और उसकी सेना और उसकी क्रांतिकारी सेना मतलब इस उद्देश्य से इन देशों पर आक्रमण कर रही थी कि आप लोगों को भी राजतंत्र से छुटकारा दिया जाएगा। तो फिर इसके साथ ही यूरोप के मतलब अन्य देशों में फ्रांस के जो अगल बगल के देश थे वहाँ पर जैकोबिन क्लब की स्थापना हो गई। एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे और फिर ये सब फ्रेंच आर्मी के लिए एक तरह से मतलब रास्ता खोल दिया कि वो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली में 1790s के दौरान वहाँ पर नेपोलियन के नेतृत्व में आक्रमण किया। और वो इस तरह से लोगों को मतलब वो दिखाना चाहता था कि मैं आप लोगों को राजतंत्र से छुटकारा देने के लिए आया हूँ, और लोग उसका स्वागत भी किए। नेपोलियन को हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी भी कहा गया, मतलब स्वतंत्रता दिलाने का अग्रदूत भी माना गया। तो नेपोलियन जहाँ जहाँ यूरोप के देशों पर अपना आक्रमण किया और अपना कब्जे में लिया, वहाँ पर उसने बहुत भारी पैमाने पर मतलब प्रशासन के क्षेत्र में उसने रिफॉर्म किए और बहुत सारे मतलब उसने नए नए नीतियाँ अपनाई। तो अब चूंकि वो अपने आप को स्वतंत्रता का मतलब अग्रदूत मानता था, तो लोगों ने उसका स्वागत भी किया। नो डाउट नेपोलियन हैड ब्रॉट बैक द मोनार्की। ऐसा है कि वो खुद राजा था, राजा बन गया था और राजतंत्र को फ्रांस में वापस लाया था, लेकिन उसने प्रशासनिक क्षेत्र में मतलब इस तरह के क्रांतिकारी परिवर्तन किए थे कि बहुत सारी सुधार उसने लागू किए थे, सामाजिक क्षेत्र से लेकर आर्थिक क्षेत्र तक। और इन सुधारों से प्रशासन काफ़ी कुशल हुआ, अर्थव्यवस्था काफ़ी कुशल बनी और लोगों की बहुत स्वतंत्रता भी मिली। मजदूर, किसान, व्यापारी सभी लोगों को मतलब पहले के राजतंत्र के मतलब नियंत्रणों से छुटकारा मिली और सभी लोग काफ़ी खुश हुए। लेकिन ये खुशी उनकी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई थी, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो जो नेपोलियन ने अपने सुधार के कदम प्रशासनिक क्षेत्र में लागू किए, उसी को हम लोग नेपोलियन कोड कहते हैं। तो उसमें नेपोलियन ने क्या क्या प्रशासनिक क्षेत्रों में परिवर्तन किया और आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन किया, उसको हम लोग जानते हैं। क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस की सेना नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांस के पड़ोसी देशों पर, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड आदि देशों पर 1790 के दौरान, 1790 के दौरान आक्रमण किया। और वो एक तरह से वहाँ पर कब्जा जमाना चाहता था। नेपोलियन यूरोप को जीतना चाहता था, लेकिन वो अपना ये संदेश लेकर जाता था, फ्रांसीसी सेना ये संदेश लेकर जाना चाहती थी कि हम लोग आपको एक नई तरह की शासन व्यवस्था देंगे, आपको राजतंत्र से छुटकारा दिलाएंगे। So now it is time to discuss about the Napoleon Code and what were its main feature. Here we see he did away all the privileges based on birth, established equality before law, and secured the right to property. तो कहने का मतलब कि नेपोलियन ने जो सब नियम लागू किए, जिन 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 प्रदेशों को यूरोप में जीतता गया, वहाँ उसने अपने नए क्रांतिकारी नियमों को लागू किया, जिसको कि नेपोलियन कोड से जाना जाता है। तो सबसे पहले उसने जन्म के आधार पर आधारित जो सामाजिक व्यवस्था थी, जन्म के आधार पर लोगों को जो सुविधाएं मिलती थी, उस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद सबको कानून के सामने बराबर कर दिया गया और सबको संपत्ति रखने की अधिकार दिया गया। सबसे पहले जन्म पर आधारित विशेषाधिकार वाली व्यवस्था को उसने समाप्त किया, सभी लोगों को कानून के सामने समान कर दिया और संपत्ति का अधिकार सबको दिया। ही सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, उसने प्रशासनिक मतलब तंत्र को भी सरल बनाया। एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड सेट द पीजेंट फ्रॉम फ्री फ्रॉम द मॉरियल ड्यूज। तो उसने क्या किया कि फ्यूडल सिस्टम मतलब सामंतशाही प्रथा को भी ख़त्म कर दिया और छोटे छोटे किसानों को मैनर प्रथा से मतलब मैनर ड्यू से उनको जो छोटे छोटे मतलब बेगार का जो काम करना पड़ता था जमींदारों के घरों में, मैनर सिस्टम था, उसको उसने समाप्त कर दिया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वे रिमूव, शहरों में जो व्यापारी लोग थे उन पर गिल्ड रिस्ट्रिक्शन होता था, उसको उसने समाप्त कर दिया।
ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर इम्प्रूव, यातायात संचार के साधनों का उसने विकास किया। तो इस तरह से उसने बहुत सारे परिवर्तन किए, और इन परिवर्तनों के चलते द पीजेंट्स, द बिजनेसमैन एंजॉयड फ्रीडम इन मैनी एस्पेक्ट्स। तो किसानों को, व्यापारियों को, छोटे छोटे मजदूरों को, सभी लोगों को नेपोलियन के इस प्रशासनिक परिवर्तन से, सुधार से काफ़ी मतलब लाभ मिला। बट देयर वेर सम लिमिटेशन एंड शॉर्ट कॉमिंग्स ऑफ नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड की कुछ कमियां भी थी। क्या थी? द एडमिनिस्ट्रेशन वेयर नॉट कोपिंग विद द सिस्टम। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन में उसने सुधार किया था, वो उसके आशा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे थे। इंक्रीज टैक्सेशन एंड ऑल्सो कंट्रोल ओवर द सेंसरशिप। उसने क्या किया कि टैक्स बढ़ा दिया नेपोलियन ने, और सेंसरशिप लागू कर दिया। मतलब कि अब कोई भी समाचार पत्र, कोई भी नाटक, कोई भी कविता, कोई भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त कर दी। फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल इन फ्रेंच आर्मीज। और वो पूरे यूरोप को जीतना चाहता था, तो अपने आर्मी में लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती करने लगा। तो इस तरह से देखते हैं कि उसमें कुछ शॉर्ट कॉमिक्स भी थी, और लेकिन उसमें बहुत सारे सुधार के भी काम हुए थे। इट हैड ब्रॉट द सी चेंज इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक स्फीयर, एंड दैट इज नोन एज द सिविल कोड ऑफ 1804। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मतलब ये जो स्विट्ज़रलैंड, इटली, डच रिपब्लिक, जर्मनी, जहाँ जहाँ नेपोलियन गया, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को मतलब इस तरह से चेंजेस किया, और इससे लोगों को काफ़ी मतलब सुविधा मिली। किसान, कारीगर, वर्कर, बिजनेसमैन, सभी को इसके एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस से काफ़ी फ़ायदा मिला। So in this way we come to know that after the first clear-cut expression of nationalism in France, the French Revolution, during French Revolution, uh, the French army under the control of Napoleon Bonaparte started to win over the adjoining countries and neighboring countries, and establish very revolutionary changes in administration and economic sphere, and which was very much remarkable one, and it used to done with the purpose to make the people free from the system of monarchical form, and this is known as the Napoleon Code. So in this way we come to know about the features of Napoleon Code and some few shortcomings. Then we will discuss next topic in new video. Till then, okay.